Hello everyone. Here we are going to discuss paper 2, that is a fundamental of financial and cost accounting, right? Let's see the first question that institute have asked in 2024 December attempt. The first question start from here. Yes. The question is expenses incurred to obtain license for starting a new factory. Oh, it is starting for the new factory that will be considered as a capital expenditure, right? The second question is the framework of accounting has pillars. Framework of accounting have how many pillars? So कितने pillars है total? There are 4 pillars, right? Which of the following relationship is correct? Assets is equal to liability minus equity. Assets is equal to equity minus liability. Assets is equal to liability plus equity, and equity is equal to liability minus assets. Simple equation is what? Simple equation is assets is equal to liability plus capital, right? This capital can be also known as equity. So our answer will be assets is equal to liability plus what? Equity. The next question is ledger folio LF column in the journal is filled at the time of. ये column कब fill होता है? तो ये column fill होता है at the time of posting. The next question is the total of discount column appearing on the debit side of a triple column cash book. Triple column cash book में 3 column आपको बताया था already. That is what? Cash column, discount column and bank column, right? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन में? The total of discount column appear in the debit side of what? Debit side of triple column cash book. So if it is on debit side, that means it will be debit of discount account, right? The next question is the question is from BRS. Okay. Check receipt from 1 second. Question number 56. Check receipt from a debtor for rupees 22,400. Check receipt कितने का किया है sir? 22,400 का. Has been recorded as 24,200. Okay. चेक कितने का डेटर से रिसीव किया था? 22,400 का. और रिकॉर्ड कितना कर दिया सर? रिकॉर्ड कर दिया उसको 24,200. ओके, चलो कैलसी यूज करो. पहले मेरे को बताओ कितना गलत रिकॉर्ड किया. लेट मी यूज द कैलसी. टोटल इज 22,400 minus 24,200. 1,800. ओके, 1,800 ज्यादा रिकॉर्ड किया, right? Now the question is in cash book while same has been collected and credited in the bank is 22,400. We received the check for rupees 22,400. We have recorded as a 24,200. That means what? Sir ज्यादा रिकॉर्ड किया कितना? 1,800. कहाँ पे सर? कैश बुक में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया. ओके, बिकॉज इन इफ आई टॉक अबाउट द बैंक बुक और पासबुक, तो बैंक स्टेटमेंट में तो प्रॉपर्ली 22,400 का रिकॉर्ड किया है. हाउ शुड इट बी ट्रीटेड व्हाइल ड्राफ्टिंग बैक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ये इंपॉर्टेंट अपने लिए. इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, मतलब सर अपना ऑपरेटर बुक कौन सा बुक है? कैश बुक है. अगर कैश बुक ही है तो कैश बुक में ज्यादा रिकॉर्ड किया है, एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया. कितना सर? 1,800 ज्यादा रिकॉर्ड किया. तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल करने के लिए सर इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. सो 1,800 विल बी डिडक्टेड. सो आंसर विल बी A. 1,800 is to be deducted. Next question is which of the following is not true about the trial balance? Is not true about the trial balance. Okay, it is mandatory. Trial balance normally we preparing as per the accounting process. We preparing was transaction to journal to ledger to trial balance, and from trial balance we preparing what? Final account, right? Yes or no? So it is mandatory. Yes sir.
It is a part of your books of account. Definitely, it is a part of your books of account. It proves accounting accuracy. Oh, this is somewhere mistake. It prove accounting accuracy. Wrong दिया ये. Trial balance क्या prove करता है? It is proof arithmetical accuracy, not accounting accuracy. So answer will be what? C. This is wrong statement. Right? Goods worth rupees 24,000 taken by the proprietor for personal use should be debited to dash account. Should be debited to dash account means what? Goods withdrawn by proprietor for the personal use. So simple, if I talk about the journal entry, so journal entry will be what? Drawing account debit. Drawing account debit. Drawing account debit to what? To purchases account. To purchases account. Right? So question is asking which account should be debited. So drawing, that means B. Drawing account will be debited, right? The next question is sales of office furniture has been credited to sales account. Okay, sales of office furniture, furniture sale किया, that is a 1 point, and credited to sales account, that is the second point. तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? अच्छा, एरर पूछ रहा है. The question is from rectification of error. तो ये पूछ रहा कौन से टाइप का एरर है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर, कैन आई से फर्नीचर इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसको बेचा तो इट विल बी कैपिटल रिसीट. सेल्स इज योर रेवेन्यू रिसीट. ये रेवेन्यू है. तो सर कैपिटल को रेवेन्यू में लेके गया, दैट मीन्स समवेयर इट इज एरर ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल. कॉन्ट्रावेंशन टू अकाउंट क्या है? यस और नो? सो इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. क्लरिकल एरर नहीं है, मिस पोस्टिंग भी नहीं है, कॉम्पेंसेटिंग भी नहीं. कॉम्पेंसेट तो बिल्कुल नहीं किया है. तो इट इज व्हाट? एरर ऑफ प्रिंसिपल. राइट. चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 60. Obsolescence means decline in the value due to अच्छा external causes पूछ रहा है वो. Due to what? Due to physical wear and tear, fall in market value price, fractions of time, change in time and fashion. So answer will be what? D. Right. इन अ कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स इन सेल बाय. इस सेल अकाउंट कौन सेल करता है? ये सेल अकाउंट पूछ रहा है ना वो. तो सेल्स कौन सेल करता है सर? कंसाइनी. किसको करता है? कंसाइनर को करता है. तो आंसर विल बी व्हाट? कंसाइनी. कंसाइनी मींस योर आंसर विल बी व्हाट? सी. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. दैट इज व्हाट? ऑन March 1st 2024 हार्दिक ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 300 bills, okay, of cotton to Karthik of Coimbatore, costing rupees 1,50,000 to be sold at invoice price of rupees 25,000. Oh, 25%. Okay, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. अपने को यहाँ पे कॉस्टिंग दिया है. कॉस्टिंग कितने का दिया? दैट इज फॉर रुपीज 1,50,000. एट द सेम टाइम टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस मतलब क्या सर? सर इनवॉइस प्राइस मतलब वो तो उसके सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है. सेलिंग प्राइस का. ओके okay. तो यहाँ पे अपने को 25% का जो प्रॉफिट दिया है ना, दैट प्रॉफिट इज ऑन सेल. राइट. ये 25% मतलब कितना रे? सो 25% मतलब 1/4 ऑन प्रॉफिट. इफ इट इज 1/4 ऑन प्रॉफिट, 1/4 ऑन सेल्स, तो कैन आई से इट विल बी 1/3 ऑन कॉस्ट. याद है ना अपने को? अपने किया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, और वी कैन से सेलिंग प्राइस, और वी कैन से इनवॉइस प्राइस, वन एंड द सेम. Right. Now, profit is 1/3, sorry, 25% on what? On invoice price. 125% matlab it will be 1/4 on IP. So it will be 1/3 on cost. Sir, मेरे को एक बात बताओ, आपने इसको 1/3 क्यों निकाला? व्हाट इज द रीजन? अरे जरा क्वेश्चन को देखो बाबा. क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में यहाँ पे जो अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये कॉस्टिंग दे रहा है. कॉस्टिंग कितना दे रहा है? 1,50,000. तो 1,50,000 का 1/3 निकालना पड़ेगा. तो लेट्स कैलकुलेट. 1,50,000, 1,50,000 into 1 divided by 3, that comes to 1,50,000 into 1 divided by 3, that comes to 50,000. अब जरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट तो कर लूं.
By what amount should consignment to Coimbatore account is to be credited account for the loading? अच्छा, पूछ भी लोड ही रहा है, देख लो यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपने को, लोड पूछ रहा है। तो कॉस्ट कितने का है, 1,50,000 का। प्रॉफिट कितना बोला है, 1/4 ऑन सेल्स बोला है सर, 1/4 ऑन आईपी मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब कितना हो जाएगा, 50,000। सो कैन आई से 50,000 विल बी द अमाउंट ऑफ लोड, सो आंसर विल बी डी, दैट इज 1,50,000। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑन January 1, 2024, कल्पित ड्रॉ अ बिल वर्थ ₹3 लाख। बिल कभी ड्रॉ किया है जरा वो भी देख लेते थे। सर ऑन 1st of January 2024, the bill is for how much, 3 lakhs rupees, okay? On Shivam for 3 months. Okay, bill is drawn for how many months? 3 months. So this is important point. Bill is drawn for 3 months and the amount of bill is for rupees 3 lakhs. Now, Kalpit got the bill discounted on 4th of January. Oh ho, 4th of January मतलब क्या सर? सर उसी महीने में किया है, लेकिन सर अपने को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मंथ में दिया है, डेज में तो नहीं दिया है, तो मंथ में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, कितना परसेंट है, 12% पर एनम। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? The question is what is the amount of discount of bill? Discount पूछ रहा है, वेरी सिंपल। अपने को कितना निकालना पड़ेगा, वो 3 lakhs टोटल अमाउंट ऑफ बिल, 3 lakhs इंटू कितना परसेंट बोला है, 12% इंटू 12% इंटू कितना सर, बिल इज फॉर 3 months, तो इट विल बी 3 डिवाइड बाई 12। यूज कैलसी, 3 lakhs इंटू 12% इंटू 3 divided by 12, that comes to 9,000. So your answer will be the discount amount for the bill will be 9,000, right? Next, when a bill of exchange is honored on the maturity date, in the books of drawee is debited। ये बिल ऑनर हुआ है, बिल ऑनर हुआ तो ड्रॉई के बुक में कितना एंट्री आएगा सर? देखो, बिल ऑनर होगा तो भी, बिल डिसऑनर होगा तो भी ड्रॉई के बुक में एक ही एंट्री आता है। द रीजन, ड्रॉई डोंट हैव एनी ऑप्शन। अपने 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन कौन सा था, रिटेंशन ऑफ बिल। देख सेकेंड ऑप्शन क्या था, डिस्काउंटेड विद बैंक। थर्ड ऑप्शन क्या था, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। But, but, these all 4 options are available only with drawer, not with drawee. The reason, drawee don't have any bill. So simple point is, अगर बिल ऑनर हुआ रहेगा, क्वेश्चन में देखते हैं कि बिल ऑनर है, हाँ सर बिल ऑनर हुआ है। ऑनर हुआ मतलब ड्रॉई ने सिंपली बिल का पैसा पे कर दिया है, बिल का पैसा पे किया रहेगा, तो कहना से नाउ दैट बिल विल बी नॉट पेएबल। पे कर दिया तो बिल्स पेएबल उसने क्रेडिट करके रखा रहेगा जब उसने बिल को एक्सेप्ट किया रहेगा। अब वो पे हो जा रहा है, पे हो जा रहा है तो बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। बिल को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, तो टू टू फटाफट बोलो, बिल जब उसने एक्सेप्ट किया था तो एंट्री क्या पास किया था सर, बिल एक्सेप्ट किया था तो एंट्री पास किया था ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ऑनर कर रहा है, ऑनर करेगा तो कहने से बिल कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ सर, सर ऑनर हो रहा है तो इसका मतलब उसने पेमेंट किया रहेगा बिल का, बट ऑब्वियसली तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो क्वेश्चन में अपने को डेबिट पूछा है कि क्रेडिट पूछा है? सर क्वेश्चन में तो डेबिटेड पूछा है, तो डेबिटेड किसको करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट, दैट मींस आंसर विल बी व्हाट, बी, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे। What will be the accounting entry for goods taken over by co-venturer in case of separate set of books of accounts are maintained? ये मेरे को एक बात बताओ, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने अकाउंट्स उसने प्रिपेयर किए थे? सर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने 3 अकाउंट प्रिपेयर किए थे। कौन सा सर? जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर, दिस इज अ वन अकाउंट। Second, the preparing co-venture account to find out the total investment of co-venturers. And third is joint bank account. ये 3 अकाउंट प्रिपेयर किया था सर उसने, यस और नो? सो कैन आई से कि अगर मैं एंट्री की बात करूंगा तो एंट्री भी यही 3 जगह से आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं एंट्री क्या आएगा। एंट्री विल बी सिंपल, इफ आई टॉक अबाउट द एंट्री, एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर अकाउंट, राइट। बहुत मारूंगा, क्या लिखा है जरा देखो यहाँ पे,
what will be the account entry for goods taken over by co-venturer. A goods taken over by co-venturer मतलब co-venturer ने joint venture से goods लिया. तो कहना से सिंपल अगर मैं बात करूंगा तो ये सिंपली जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं अगर मैं, तो जॉइंट वेंचर ने को वेंचर को गुड्स दिया, उतना लायबिलिटी कम हो जाएगा. अब सर को वेंचर का कैपिटल तो अपने लिए लायबिलिटी था, कम करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा. सो एंट्री विल बी व्हाट, एंट्री विल बी को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. राइट, क्लियर. नेक्स्ट, joint venture account is in nature of what? Obviously, we preparing joint venture account. Why? Sir, we preparing joint venture account to find out the profit and loss of joint venture. Profit and loss account find करने के लिए कोई भी account हम लोग prepare करते हैं तो that is considerable as a nominal account. So answer will be nominal account. Right? Next one is मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया था सर? मेमोरेंडम जॉइंट अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट भी प्रिपेयर किया था टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर. सो आंसर विल बी टू अ सर्टेन व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ व्हाट, जॉइंट वेंचर. इज दैट क्लियर? अभी तक तो मुझे क्वेश्चन इजी लग रहे थे सब, कुछ नॉर्मल डिफिकल्ट जैसा तो लगा नहीं. देखते हैं. Work in progress gets reflect in which of the following components of a financial statement of a manufacturing cum trading account. Manufacturing cum trading account मतलब कौन सा अकाउंट सर? ये तो फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बात कर रहा है. तो कहने से इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वी प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वी प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. राइट, नॉर्मली ये अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन में पूछ रहा वर्क इन प्रोग्रेस. ए वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या सर? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब गुड्स अभी वो रॉ मटेरियल भी नहीं है और गुड्स अभी वो फिनिश्ड भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो फिनिश हो जाएगा तो इट विल बी कंसीडर फॉर द पर्पज फॉर द सेल. तो अभी वो फिनिश गुड्स हुआ नहीं है, तो कहना है सही कि इसको डालना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही, क्योंकि अभी तक उस पर काम चालू है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. यहाँ पे 69, the balance of depreciation on a plant account appear in the trial balance will be. अगर वो trial balance में prepare है तो कहाँ जाएगा? The balance of depreciation on plant account appear in trial balance. अच्छा, सॉरी, ट्रायल बैलेंस में दिया तो कहाँ जाएगा? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रायल बैलेंस में दिया तो ट्रायल बैलेंस हैव ओनली वन इफेक्ट. इफ इट इज इन एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट. कौन सा सर? हम लोगों ने बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस किया था और सेकंड पीएनएल डेबिट में किया था. बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया है कि वो ट्रायल बैलेंस में दिया, तो ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव ओनली वन इफेक्ट. राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट, एन assets having physical existence है मतलब कौन सा assets है सर? tangible assets है. Intangible assets are those assets which we cannot see, which we cannot touch, which we cannot feel. तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा सर? ये तो tangible assets है फिर. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. In Arjun's government business for the year 2023-24. Okay, business for the year 2023 and 24. Value of a stock in trade on 1st of April 2023. तो ये 1st of April को बोल रहा है, मतलब ये कौन सा 1st April? मतलब सर समवेयर इट इज ओपनिंग. देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है. मैं क्वेश्चन पूरा नहीं रीड किया, पर ठीक है, रीड करते टाइम जितने इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं वो लिख लेता हूँ. इन ट्रेड ऑन 1st of April 2023 मतलब ये ओपनिंग का बात कर रहा है. And 31st of March 2024. 31st of March 2024 मतलब सर ये इंफॉर्मेशन क्लोजिंग का बात कर रहा है. वो क्लोजिंग का बात कर रहा है. ठीक है. परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज अमाउंटेड रुपीज 9,50,000. अच्छा, ये परचेज किया है दैट इज 9,50,000. द रेट ऑफ अ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%. लो, क्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया. कितना परसेंट सर? 30%. ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओ हो, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. दैट इज व्हाट, दैट इज
rate of gross profit is 30% on cost of goods sold. COGS पे बोल रहा है वो 30%. So be clear guys, ये 30% COGS पे है. गलती से भी ये 30% सेल्स पे मत कंसिडर कर लो. वैसे भी अपने को क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है. ठीक है. व्हाट इज द सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2023 एंड 24. पूछ भी क्या रहा है, सेल्स ही पूछ रहा है. ठीक है ना. एक कहना है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, that is on 1st of April 2023. At the same time on 31st of March 2024 we have closing stock also. So opening stock is 2,50,000 whereas closing stock is 2 lakhs. और एट द सेम टाइम में सर मेरे को परचेज भी तो दिया है 9,50,000 का. ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ये मेरा परचेज है. कहना है इसे ओपनिंग स्टॉक प्लस purchases minus closing stock will be cost of goods sold. फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे. COGS का फॉर्मूला क्या था फटाफट बताओ, मैंने बताया है ऑलरेडी. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. एक सेकेंड ना, थोड़ा स्पेस यूज कर लेता हूं, जगह बहुत है अपने पास. यहाँ पे लेते हैं 71. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक will be your COGS. फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. ओपनिंग स्टॉक कितना है सर 2,50,000 इज ओपनिंग स्टॉक. ओके. 2,50,000 प्लस परचेजेस कितना सर, परचेज अमाउंट इज 9,50,000. ओके. माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक इज 2 लाख रुपीज. ओके. दैट विल बी योर COGS. Now consider the amount of COGS. Calculate the amount of COGS. कैसे यूज करो. 2,50,000 plus 9,50,000, that comes to 12,000. Sorry, 12 lakhs minus 2 lakh, that will be 10 lakh. So amount of 10 lakhs will be your COGS. कॉस्ट आ गया. अब प्रॉफिट किस पे बोला है सर, प्रॉफिट 30% किस पे बोला, कॉस्ट पे तो बोला है. सो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 10 lakhs into 30%. So 10 lakhs का into 30%, that comes to 3 lakh rupees. ए मेरे को बताओ फटाफट, ये 10 lakhs क्या था सर, ये तो अपना कॉस्ट है. ओके. ये 3 lakhs क्या है सर, ये तो अपना प्रॉफिट है. तो कहना है इसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस और सेल्स. कॉस्ट कितना सा सर 10 lakhs का, प्लस प्रॉफिट कितना है सर 3 lakhs का. तो कहना है इसे सेल्स विल बी 13 लाख रुपीज. कॉस्ट कितना था 10, प्रॉफिट 3, सेल्स कितना हो जाएगा 13 लाख. इज दैट क्लियर. चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं, आंसर कितना आएगा इसका 13 lakhs. 72 पे आ जाते हैं. एन अमाउंट ऑफ अ डोनेशन रिसीव्ड. ओके. ये डोनेशन रिसीव का मेरे को फटाफट बताओ, डोनेशन कितने टाइप में होगा. सर देखो आपने बताया था डोनेशन 2 टाइप में होगा. इधर इट कैन बी जनरल डोनेशन और इट कैन बी स्पेसिफिक डोनेशन. लेट मी राइट हियर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. डोनेशन कैन बी जनरल डोनेशन और इट कैन बी स्पेसिफिक डोनेशन, राइट. इफ इट इज जनरल डोनेशन तो कहने से जनरल डोनेशन इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार होता है. तो सिंपली कैन आई से इफ इट इज जनरल डोनेशन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेवेन्यू रिसीट. लेकिन सर अगर वो गलती से स्पेसिफिक डोनेशन रहा तो बताया तो था ना यार, स्पेसिफिक हो गया इसका मतलब ये रिकरिंग नहीं है. रिकरिंग नहीं है तो कैपिटलाइज करो. यस और नो. तो यहाँ पे आ जाते हैं. फॉर द स्पेसिफिक पर्पज लिखा भी है इधर देखो. बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. स्पेसिफिक पर्पज मतलब सर ये कैपिटल रिसीट है, बार बार नहीं होने वाला है. तो आंसर क्या होने वाला है, ये बी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 73. 73. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द which of the following is the statement of what.
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना, तो इनकम स्टेटमेंट क्या, इनकम स्टेटमेंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस और नो। सोशल क्लब रिसीव्ड अ सब्सक्रिप्शन वर्थ रुपीज 74, क्वेश्चन पे आ गया हूँ। यस, सोशल क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन वर्थ रुपीज 1,19,000। एक मिनट, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट लाइन रीड करते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है अपने से। A certain amount the subscription to be credited in income and expenditure account. Okay, वो पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन कितना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो कहना है सिंपली, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, मैं प्रिपेयर कर लूंगा छोटा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट will be better for me to calculate the amount of subscription transfer to income and expenditure account। चलो आ जाते हैं यहाँ पे भी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये दो चीज मेरे को बताओ फटाफट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है कि लायबिलिटी? सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एसेट्स है। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन सर इट इज लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट, if it is of last year, so last year मतलब opening, if it is in the current year but still outstanding for the next year, so it is closing assets, yes or no? तो opening assets debit, closing assets credit, बताया था ऑलरेडी ये, सेम एज इट इज। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है तो सर लाइबिलिटी हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा तो ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट एंड क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, फटाफट पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन में क्या दिया। और सोशल क्लब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना, 1,90,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव। जर्नल एंट्री बोलो फटाफट। सो जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लेट मी राइट हियर, एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, cash bank account debit to what, to subscription account, and the amount will be 1,19,000, right? Clear? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश बैंक एंड द अमाउंट ऑफ कैश। एक मिनट, अगर गलती से ओपनिंग लाइबिलिटी रहा तो थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कैश बैंक कितना आ जाएगा, 1,19,000। ठीक है, किधर गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर्थ रुपीज 1,90,000। ओके, फिर इन कैश ड्यूरिंग द ईयर और सर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, एंड डिटेल आर एज फॉलो। एरर्स सब्सक्रिप्शन ऑन 31st of March 2023। ये मेरे को बताओ, 31st of March 2003 मतलब ये अपना करंट ईयर है कि लास्ट ईयर है? सर देखो, ड्यूरिंग द ईयर बोला है ना यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब सर ये 2023-24 अपना करंट ईयर है। ये तो कहना ही से कि ये ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हुआ रहेगा 1st of April 2023 से और एंड होगा 31st of March 2024 को, राइट ना? तो सर ये जो 31st of March का सब्सक्रिप्शन बता रहा है, एरर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, बता रहा है वो कभी का है सर, वो तो लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर मतलब कौन सा, ओपनिंग, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सर ये ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग एसेट मतलब डेबिट होगा। ओके, तो कहना है सर हियर इट विल बी ऑन डेबिट साइड 17,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर क्या बोल रहा है, एंड 31st of March 2024, लो करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग रखा तो इट विल बी फॉर द नेक्स्ट ईयर 23,000, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग आ गया कितना, 23,000 का। ओपनिंग लायबिलिटी सर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग लायबिलिटी सर ये भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखते हैं कितना आता है, क्लोज करो इसको। 1,19,000, 1,19,000 plus 23,000, that comes to 1,42,000. 1,42,000. Here also 1,42,000.
minus 17,000, that comes to 1,25,000. That amount will be transferred to income and expenditure account. So answer will be 1,25,000. Okay, 1,25,000 मतलब आंसर ए आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 74. नेक्स्ट क्वेश्चन. Receipt and payment account of a non-profit organization is in it. A receipt and payment account मतलब मेरे को फटाफट बताओ किसकी बात कर रहा है वो. सर receipt and payment account मतलब simply question is talking about what? Talking about cash book. कैश बुक की बात कर रहा है सर ये. तो मेरे को फटाफट बताओ कैश बुक इज विच टाइप ऑफ अकाउंट. सर इज द रियल अकाउंट. यस और नो, कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. ऑल रेवेन्यू all revenue receipt and expenditure are shown in all revenue receipts. Okay, revenue receipts का बात कर रहा है और एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है. ठीक है, ये कहाँ शो होगा. सर देखो, रेवेन्यू बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखता है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब नहीं दिखेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं, तो आंसर विल बी व्हाट? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा. ऑब्वियसली यार, रेवेन्यू रिसीट मतलब रिकरिंग इन नेचर है. रिकरिंग इन नेचर मतलब सर वो नॉमिनल अकाउंट है. तो नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाएगा? इधर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट में कभी जिंदगी में नॉमिनल अकाउंट का वर्ड नहीं जाता. वी नेवर रिकॉर्ड एनी आइटम ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल अकाउंट जाएगा या फिर रियल अकाउंट जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. राइट. 77. If opening capital is 18 lakhs, okay, closing capital is 22 lakhs. ठीक है, दो इंफॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है. ओपनिंग कैपिटल इज 18 लाख एंड क्लोजिंग कैपिटल इज हाउ मच? इट इज 22 lakhs. ओके, एंड ड्रॉइंग आर 8 lakhs. ठीक है ना. ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, क्लोजिंग इज ऑल्सो गिवन, ड्रॉइंग भी दे दिया. तो अपने को पूछ कर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. सिंपल है, प्लस माइनस करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. और जैसे कि मैंने लेक्चर में तुमको ऑलरेडी बताया था, फॉर सिंपल फॉर टू डू द सिंपल कैलकुलेशन वी कैन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. सिंपल. तो लेट मी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 77. कैपिटल अकाउंट. ये कैपिटल क्या है? सर लायबिलिटी. बेसिक बैलेंस क्रेडिट. ओके, so can I say basic balance credit means opening balance will be on credit side and closing balance will be on debit side, right? चलो, if opening capital is 18 lakhs, credit side में लिख दो यहाँ पे 18 lakhs. okay, closing capital is 22 lakhs, so यहाँ पे आ जाएगा 22 lakhs. it is closing amount of capital, डेबिट साइड. ड्राइंग कितना बोला सर? ड्राइंग इज 8 लाख. ड्राइंग डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सर देखो ना, कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है. ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करते हैं मतलब सर सिंपली ड्राइंग कैपिटल को डिक्रीज करता है. डिक्रीज करेगा तो कहने से कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. सो दिस 8 lakhs अमाउंट विल बी डेबिटेड. लिख दो डेबिट में. यहाँ पे द अमाउंट ऑफ ड्राइंग थोड़ा ऊपर लिखता हूँ. राइट. चलो टोटल करते हैं यहाँ पे फटाफट. 22 lakhs plus 22 lakhs plus 8 lakhs कितना? So it will be 30 lakhs. यहाँ पे भी 30 lakhs लिख दो. 30 lakhs minus कितना था? 18 lakhs will be 12 lakhs. Will be 12 lakhs. So simple answer will be your 12 lakhs. Sorry, 12 lakhs किधर है? 12 lakhs is A.
राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 78, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द, ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, मैंने तुमको बताया था ऑलरेडी। नोटिंग चार्जेस इज ऑलवेज पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल, जिसने बिल को होल्ड किया है वही नोटिंग चार्जेस पे करेगा। से एग्जांपल, बिल ड्रॉवर के पास है तो नोटरी पब्लिक के पास कौन जाएगा, ड्रॉवर। डिस्काउंटेड विद बैंक किया तो बैंक जाएगा, एंडोर्समेंट किया तो एंडोर्सी, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया तो अगेन बैंक। तो सिंपली द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस इज ऑलवेज पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल, बट the important information point is what, finally it is to be borne by drawee, उसका पैसा भरता कौन है, ड्रॉई। तो क्या लिखा है, नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय तो होल्डर ऑफ बिल आ जाएगा। बट इज रीइंबर्स बाय लिखा है तो क्या आ जाएगा, ड्रॉई। तो होल्डर एंड ड्रॉवर नहीं, आंसर विल बी देन बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू मतलब क्या, सर the amount of depreciation will not be same for every year because we are not going to charge the amount of depreciation on original cost. Here we are charging the depreciation on the WDV, जो बैलेंस आएगा उस पे हम लोग हर बार डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो कहने से एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू डिक्रीज, हर साल धीरे धीरे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, डब्ल्यूडीवी मतलब क्या, कम होता जाएगा, ध्यान में रखना। वो रिमेन द सेम, रिमेन सेम नहीं होगा क्योंकि सेम कब होगा, जब वो ये स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करेगा। इंक्रीज नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा एवरी ईयर, तो इट विल बी डिक्रीज एवरी ईयर, राइट। नेक्स्ट वन इज 80, which of the following is are the basic objective of accounting। अच्छा, objective of accounting पूछ रहा है। तो systematic recording of transaction, obviously accounting recording the it's record the systematically of all the transaction, फिर determine the operation result, but obviously or settlement of a financial position, ये भी correct है। तो आंसर क्या हो जाएगा, all of the above। So 80 का आंसर will be what, D। If the income are 27,500 and deficit debit to capital fund is 2,600, then expenditure, जरा क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द इनकम इज 27,500, ये क्या है अपना इनकम, राइट। डेफिसिट कितना हुआ है, डेफिसिट हुआ है, डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 2,600, देन द एक्सपेंडिचर क्या पूछ रहा है अपने को, देन द एक्सपेंडिचर। कैन आई से सिंपली अपना, अगर मैं बात करूंगा इनकम का, तो इनकम कितना था सर, 27,500, और डेफिसिट भी बता रहे कितने का, 2,600, और क्वेश्चन में अपने को एक्सपेंडिचर अगर वो पूछ रहा है तो कहना है से इनकम से ज्यादा खर्चा कर दिया है। हाँ सर, कितना, जितना उसका डेफिसिट था। से एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो 27,500 वॉज टोटल इनकम, ये प्लस करो जरा, तो प्लस करो 2,600 को, तो 27,500 प्लस 2,600, तो इसका मतलब उसने खर्चा किया है 30,100 का। तो ऐसा सिचुएशन हुआ रहेगा, द टोटल इनकम इज 27,500 बट एक्सपेंसेस इनकर्ड इज 30,100, तो डेफिसिट कितने का आ जाएगा सर, डेफिसिट आ जाएगा, टोटल डेफिसिट विल बी 2,600 का। इज दैट क्लियर, ये डेफिसिट आ जाएगा 2,600। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओ सॉरी एक्सपेंडिचर पूछा है ना, तो एक्सपेंडिचर कितने का किया रहेगा, 30,100 का, राइट। नेक्स्ट वन इज what is the value of sundry creditor at the end of the year when opening sundry creditor is 19,000। जरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते तो when the what is the value of sundry creditor at the end of the year, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रेडिटर कितना होगा और एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब सर क्लोजिंग क्रेडिटर की बात कर रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर, सिंपल है, वी कैन प्रिपेयर द क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बना देते हैं, आंसर खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में क्या कह दिया है। व्हेन ओपनिंग सन्डी क्रेडिटर इज 19,000, सन्डी क्रेडिटर ओपनिंग, क्रेडिटर क्या है सर, क्रेडिटर लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो मेरे को फटाफट बताओ, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सर, लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। ओके, कैश पेड इज हाउ मच, 54,800,
सर क्रेडिटर को कैश पेमेंट भी कर दिया, कितना पे किया 54,800 का। डिस्काउंट रिसीव कितना किया है सर 1,000 का, ओके। और क्रेडिट परचेज वापस से कर लिया 61,200 का। लेट अस प्रिपेयर द क्रेडिटर अकाउंट, ज्यादा इजी हो जाएगा। इधर प्रिपेयर करते हैं अपने। चलो, the opening creditor is the, sorry, when the opening creditor is कितना 19,000, opening creditor liability, opening balance will be on credit side, that comes to 19,000। कैश पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर, एक कैश पेड का जनरल एंट्री बोलो सर, क्रेडिटर लायबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिटर कैश पे करेंगे तो कहने से उतना मेरा क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सो हियर इट इज माय क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट। कैश पे करेंगे तो एंट्री विल बी अबाउट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पे कैश बैंक पे किया, कितना पे किया 54,800, 54,800, राइट। डिस्काउंट रिसीव कितना 1,000 का डिस्काउंट रिसीव किया, तो क्रेडिटर उतने से कम हो जाएगा, 1,000 डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट परचेज किया, वापस से क्रेडिट परचेज का जनरल एंट्री, सर क्रेडिट परचेज का तो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में आएगा बाय परचेज एंड अमाउंट विल बी 61,200। ये मेरा परचेज, सॉरी, ये मेरा ओपनिंग क्रेडिटर था, ये मेरा परचेजेस है, ये कैश बैंक है, और ये डिस्काउंट रिसीव फॉर क्रेडिटर है। टैली करो उसको। 19,000 प्लस 61,200, 80,200। और देखो इसका बैलेंस ना डेबिट में ही आएगा, 200 डेबिट में आएगा। अरे बाबा क्वेश्चन को देखना अच्छे से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर एट द एंड। एट द एंड मतलब क्या सर, क्लोजिंग क्रेडिटर पूछ रहा है। क्लोजिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, तो मैंने ओपनिंग डेबिट में लिखा ना, तो क्लोजिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा यार, लॉजिकल है। तो कितना ये आ रहा है सर 80,200 का। मैंने 80,000 क्यों लिख दिया, this will be 80,200, right, 80,200। now minus 1,000 minus 54,800, that comes to 24,400। 24,400 will be the amount of closing creditor। ये मेरा ओपनिंग था, तो ये मेरा क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस फॉर द क्रेडिटर, राइट। तो जरा चेक करते हैं आंसर में अपने पास है क्या, 24,400। हाँ सर, क्या है, क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 83। इन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, वापस से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, बीआरएस से पूछ रहा है, राइट। इन अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, a check of rupees 3,655, 3,655 deposited into bank but not recorded in cash book। चेक क्या किया सर, दो चीज अपने को समझना है, पहले ये समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। इन अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक ओवरड्राफ्ट दिया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर क्या सर, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैन आई से इफ इट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन, सो सिंपली आवर ऑपरेटर बुक विल बी पासबुक, दैट इज वन पॉइंट। दूसरा, चेक क्या किया है सर, 3,655 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिपॉजिट तो कर दिया बट उसको अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन समझ रहे हैं आपको क्या किया उसने। तो सर चलो फटाफट एंट्री करते हैं। देखो, दिस इज अबाउट माय कैश बुक
एंड हियर इट इज व्हाट माय पासबुक। चलो, चेक क्या किया था, डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया, तो कैश बुक में एंट्री किया क्या, नहीं, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं किया, बट एट द सेम टाइम पे सर उसने पासबुक में तो एंट्री किया होगा ना, क्योंकि चेक डिपॉजिट किया होगा तो चेक क्लियर हुआ होगा, चेक क्लियर हुआ होगा तो मेरा पासबुक बढ़ गया होगा। सो पासबुक बैलेंस विल बी इंक्रीज, बढ़ गया मेरा पासबुक कितने से, 3655, बढ़ गया। अब फटाफट मेरे को बताओ ऑपरेटिव बुक कौन सा है, सर ऑपरेटिव तो पासबुक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, सर वापस से इक्वल करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मतलब विल बी डिडक्टेड बाय 3655, राइट। नेक्स्ट वन, 84 नंबर क्वेश्चन, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव किया, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव किया तो क्या है ये, सर देखो लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव किया तो मतलब ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग, सर ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है तो कहने से इट विल बी कंसीडर्ड एज अ व्हाट, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न बुक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सेल्स रिटर्न किसका पार्ट है, सर जर्नल का पार्ट है ना ये तो, यस और नो, याद करो तुम लोग को, जर्नल इज इन डिवाइड इन 4 डिफरेंट बुक, पहला कौन सा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, फिर बिल ट्रांजेक्शन एंड जर्नल प्रॉपर। तो ये जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, लेट मी राइट हियर, थोड़ा सा क्लियरिटी दे देता हूँ, 85 क्वेश्चन में, जर्नल, जर्नल को कितने पार्ट में किया था सर, तो जर्नल को 4 पार्ट में किया था, कौन कौन सा, सर जर्नल को 4 पार्ट में किया था, पहला था कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा विल बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तीसरा कौन सा था, सर बिल ट्रांजेक्शन, और चौथा कौन सा था, अदर्स, अपन इसको बोल सकते हैं अदर्स है, और एल्स वी कैन से इट इज व्हाट योर जर्नल प्रॉपर वन इन द सेम, राइट। कैश ट्रांजेक्शन, बिल ट्रांजेक्शन, अदर्स का तो मैं बात नहीं करूंगा, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कहने से वी ओनली रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अपार्ट फ्रॉम गुड्स वी आर नॉट रिकॉर्डिंग एनीथिंग, बट इट शुड बी द ट्रांजेक्शन शुड बी इन क्रेडिट ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स ही होना चाहिए, दैट इज अ वन पॉइंट, और दूसरा वो क्रेडिट में ही होना चाहिए। ये जो ट्रांजेक्शन था ये 4 पार्ट में था, सर कौन सा इसका 4 पार्ट है, बताता हूं ना, पहला परचेज बुक, दूसरा परचेज रिटर्न बुक, तीसरा सेल्स बुक, सेल्स बुक एंड द लास्ट वन इज सेल्स रिटर्न बुक। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे को, क्वेश्चन में पूछ रहा है सेल्स रिटर्न बुक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, तो जरा यहाँ पे देखो, सेल्स रिटर्न मतलब ये गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा, गुड्स का ट्रांजेक्शन मतलब एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और किसका पार्ट है, जर्नल का पार्ट है। सो सेल्स रिटर्न इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इज दिस क्लियर, पक्का, चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। सी ए एस 7 डील करता है एम्प्लॉय कॉस्ट से, which of the for which method of a costing is appropriate for the what, for the pharmaceutical industry, pharmaceutical industry के लिए कौन सा आएगा, तो सर 1 सेकेंड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, 88 पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ डैश कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का पार्ट चालू हो गया अभी यहाँ से, ये कॉस्टिंग अपना चालू हो गया था यहाँ से 86 से, 86 से टिल 100 तक 15 क्वेश्चन ना, 30 मार्क्स, राइट, सॉरी। In case of dash costing, the main objective is to a certain cost that have been incurred in the past, in the past मतलब वो historical cost का बात करें तो आंसर क्या आएगा, historical costing, which is the appropriate cost unit for cement industry, अच्छा cement industry के लिए तो सर metric tons होगा, but obviously next one is dash is a device for the purpose of breaking up the cost into the smaller subdivision attributable
टू प्रोसेस और सर्विसेज इज व्हाट, स्मॉलर बोला है, स्मॉलर मतलब वो कॉस्ट यूनिट का बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is the classification of a cost by function, cost by function पूछ रहा है वो function, function मतलब fixed cost, variable cost नहीं, material cost, employment cost is also, so production cost अच्छा by function मतलब it will be production cost, administration cost, selling and distribution overhead, research and development, ये सारे cost किस में आते हैं, ये function ये किसका पार्ट है, function का पार्ट है, राइट। 91 के बाद आ जाते हैं 92 पे। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड बाय, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू किया है, तो सर इसको इशू किया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि इसको इसको द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने किया, बट नो, द आंसर विल बी अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, राइट। नेक्स्ट वन इज 93. Calculate the value of a closing inventory of the finished goods from the given data. क्या पूछा है अपने को कैलकुलेट करने के लिए, the question is asking to calculate the value of a closing inventory. Okay, value of a closing inventory of a finished goods from the given data. Okay, cost of goods sold is 3,60,000, cost of production is 3,40,000, and value of a opening inventory of the finished goods is 1,80,000. Okay, so simply let's prepare the cost sheet format, but not पूरा, I'll prepare उतना जितना अपने लिए important है। अपने को डेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से दिया है, और क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods, opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods, right. So here it will be cost of goods sold, cost of goods sold। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,60,000, ये अपने को दे दिया है 3,60,000। ओके, finished goods, cost of finished goods is 3,60,000, cost of production is 3,40,000, ये दे दिया 3,40,000 का। ओके, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्रीज ये भी दे दिया है कितना, 1,80,000। अच्छा, तो ये पूछ रहा है अपने से, ये क्लोजिंग पूछ रहा था ना, अपने को सारी इंफॉर्मेशन तो दे दिया है, 3 लाख, रिवर्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी करो, 3,40,000 प्लस 1,80,000 माइनस 3,60,000, that comes to 1,60,000, that comes to 1,60,000, clear। Next, so answer will be what, B। Overheads are the cost incurred in handling का बात कर रहा है, और डिलीवरी
आई थिंक सो। शायद वो पीछे का 2 क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो मैं वापस से बोल देता हूँ। अगर नहीं हुआ रहेगा तो क्रॉस चेक करना। 93 वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया था, शायद ये है ऑलरेडी। 94 का, overheads are cost incurred in handling the product services that at the time of or ready to dispatch बोल दिया, मतलब कॉस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएगा। कॉस्ट आर बाय नेचर हाइपोथेटिकल बोला तो ये नोशनल कॉस्ट का बात कर रहा है। नोशनल कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट? इम्प्यूटेड कॉस्ट, राइट। चार्जेबल एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज, तो इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा तो मैंने वापस से बोल दिया, हुआ रहेगा कोई बात नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स? बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स बोल रहा है। बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स मतलब क्या सर? मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात कर रहा है, तो आंसर विल बी व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग किसके लिए होता है? बैच कॉस्टिंग फॉर बैच कॉस्टिंग कभी भी याद रखो, बैच कॉस्टिंग इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, तो इट इज फॉर द टॉय मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट, दो चीजें मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम और फिक्स्ड इन अमाउंट, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर यूनिट सर, वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, direct material and direct wages are 2,32,000. Direct material is 2,32,000 and direct wages is 2,05,000. Okay, respectively. Hmm, if the factory overheads are 60% of what? Of direct wages. Okay, factory overheads बोल रहा है 60%, ठीक है ना? तो let me prepare the small cost sheet format. यहाँ पे आ जाता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, नो अदर एक्सपेंसेस गिवन, तो ठीक है मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ इसको। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आई गेट व्हाट? आई गेट फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। चलो मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। सर डायरेक्ट मटेरियल दिया है 2,32,000, फिर डायरेक्ट वेजेस इज गिवन दैट इज 2,05,000। 2,05,000 will be the amount of direct wages. If the factory overhead is कितना, ये दोनों को ऐड करो पहले, तो मेरे को प्राइम कॉस्ट मालूम पड़ेगा। 2,32,000, 2,32,000 plus 2,05,000, that comes to 4,37,000. 4,37,000 is the amount of what? Prime cost. अब क्वेश्चन में मेरे को बोला फैक्ट्री ओवरहेड 60% है, किसका? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है कितना अपना? 2,05,000 ना, तो 2,05,000 का 2,05,000 इंटू 60%, दैट कम्स टू 1,23,000। 1,23,000 प्लस तेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकाल देता हूँ 4,37,000, सो इट विल बी 5,60,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फैक्ट्री कॉस्ट ही पूछ रहा है ना सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट ही पूछ रहा है ना। फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट विल बी 5,60,000। इज दिस क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच।